देखती आंखों सुनते कानों, अल्फ्रेड गेल, आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 778, 778, और शो का टॉपिक है एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे का बोझ उठाओ। और यह हवाला मिला है मुझे पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम, और उसका 6 बाप, और उसके ऊपर जो ये टॉपिक है एक दूसरे का बोझ उठाओ, और यही मेरा आज का टॉपिक है। और 6 बाप और उसकी पहली 5 आयत पढ़ूंगा। आए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए, तुम जो रूहानी हो उसको हलीम मिजाजी से बहाल करो, और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, और यही मेरा आज का टॉपिक है। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो, तो अपने आप को धोखा देता है। कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने अपने ही काम को आजमा ले। इस सूरत में उसे अपनी बाबत फखर करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत। क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और ये था आज का मेरा टॉपिक, एक दूसरे का बोझ उठाओ। और सबसे पहले एक खूबसूरत पंजाबी गजल सैमसन तारक साहब, रेवरेंड सैमसन तारक साहब कैलिफोर्निया से। और उससे पहले एक शेर है बशारत गिल साहब हालैंड से, सप्पां विच है रहना है, हुण भी फिर वजानी सिख ला, सारी बीन वजानी भी फिर सिख ला। ते ऐसी साडे लोकां दी जिंदगी कि असी रोंदे ही रहने कि असी सप्पां च रहने, लेकिन फिर असी उन्हां सप्पां नाल दोस्ती भी रखने, उन्हां नूं प्यार भी करने, उन्हां दियां झूठियां हर गल्लां जेहड़ियां ने वो असी मानने। वो झूठ दी बीन वजाई जांदे ने, वो झूठ दी बीन दिन रात वजाई जांदे ने, और असी उन्हां दी झूठी बीन ते मस्त होए। जिवें सपेरा सप नूं मस्त कर लैंदा, मतलब किड्डा भी ਜ਼ਰੀਲਾ होवे। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬੀਨ ਵੀ ਫਿਰ ਵਜਾਣੀ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਬੀਨ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚੀ ਬੀਨ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬੀਨ ਵਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਸੈਮਸਨ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ
ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਦਰਾਜ਼ੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 220 2020 ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। وہ آئے گا تو 100 سال دے بعد واپس آئے گا، نہ ہم ہوں گے نہ پتہ نہیں کدھر ہوں گے، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ تو کدی سوچ وچار کر پیارے، کدی سانو اپنے متعلق سوچ بھی وچار کرنی چاہیے تے ایک دوسرے دا بوجھ اٹھانا چاہیے کہ ایک دوسرے دا سہارا بنیے۔ دنیا تے کی نہیں، دنیا تے کسے نہیں بہ رہنا، بالکل اسی اج اگر ایک دوسرے دا خیال کریں گے، ایک دوسرے دا بوجھ اٹھاواں گے، اساں کیڑا دنیا تے بہ رہنا، لیکن اگر اسی اچھے کام کر کے جاواں گے تو پھر ضرور دنیا تے لوگ ساڈے جڑے آسے پاسے یار دوست رشتے دار پڑوس جو بھی جتھے جتھے بھی ساڈی آواز پہنچدی ہے، جتھے جتھے اسی بیت کے آئے ہیں، کم کیتے نہیں یا رہ کے آئے ہیں، وہ دنیا ضرور یاد کرتی ہے، لیکن مرن دے بعد یاد کرتی جدو ویڑا ختم ہو چکیا ہوندا ہے۔ جنہ جمیا وہ بھی لد گئے نے، بالکل جنہ ساڈے ماں باپ نے سانو جمیا، جنہ دے گھر چ اسی پیدا ہوئے وہ بھی ختم ہو گئے، ساڈی فیملیاں ہی ختم ہو گئی، دادے پردادے چاچے تائے مامے پھوپھیاں سب ختم ہو گئے نے۔ تے چلو شکر ہے اج اسی بھی ظاہر ہے ساڈا بھی ویڑا ہونا ہے، تے حقیقت ہے موت تے حقیقت ہے، اسی ادو تو پیچھے تے نہیں ہٹ سکتے، تے اساں بھی لد جانا، اساں بھی اس دنیا چو تر جانا، مٹی دا حصہ رہ جانا ہے، بالکل مٹی دا حصہ ہی رہ جانا ہے، جدو ساہ نکل جاندہ ہے تو پھر اسی مٹی ہونے، ٹھیک ہے جنہ تک اسی بدن ہوندا جنہ تک اسی دفنا نہیں دیندے، قبر چ اتار نہیں دیندے، ضرور ہو ہے سواڈے سامنے، لیکن جویں ہی وہ قبر چ چلا جاندا اس دے بعد وہ مٹی ہونا شروع ہو جاندا ہے۔ بیٹھ رہنا ہے تو تکرار وچ، کیوں اسی ایک دوسرے تے تکرار کردے رہنے، خدا دیاں گلاں تے بھی ہور بھی اسی تکرار ہی کردے رہنے ہاں۔ وار تیرا لوکاں سہ جانا ہے، لوکاں نے تے تیرے چ جنہ بھی وار کرنا ہے، غلط کام کرنا ہے وہ تے سہ جان گے، لیکن تیری ہسٹری جیڑی ہے وہ کدی اچھی نہیں ہو سکتی۔ وقت یسو دی یاد ہے، یہ جڑا وقت ہے یہ یسو دی یاد چ اسی گزاریے، کیونکہ اگر اسی یسو مسیح اپنے نجات ہندہ دی یاد وچ اپنی زندگی گزارنے، جنہ خدا نے سانو اس دنیا تے وقت دیتا ہے، وہ خوبصورت وقت اسی اپنے یسو دی یاد چ گزاریے۔ فکر غماں چ تو سہ جانا ہے کہ جیڑی ساڈی زندگی دے نال غم نے، تے حقیقت ہے جتھے دکھ ہے اتنے سکھ بھی، غم بھی نے، خوشیاں بھی نے، یہ تے زندگی دے نال ہے، ساڈے نال غم نہیں آندے نے، خوشیاں بھی ہیں، تے اس لیے اسی اتھے جیڑا ویڑا لنگ جاندا ہے اسی کیوں انہوں ضائع کریے، انہوں اگے اپنی منزل اگے اگے بڑھتے جائیے، اگے جیڑی خوبصورت جگہ ہے وہ دی تلاش کریے۔ بہت اچھا لکھیا، گزریا وقت نہیں ہاتھ آنا، کم کردیاں نب جانی ہے، بالکل انسان پیدا ہوندا ہے اس تو بعد جویں ہی وہ زندگی شروع کردا ہے، جنہ تکر بھی وہ ساہ ہوندا ہے وہ کم ہی کردا رہندا ہے، کئی دفعہ تے کام کردیاں ہی سار نکل جاندے، پتہ ہی نہیں لگتا، کیونکہ ایک زندگی دا طریقہ کار ہے۔ اس دے بعد روت بلگاٹسیا لاہور سے انہوں نے پوسٹ لکھی ہے، ہمیشہ وہی لوگ آپ کے بارے میں سازشیں غیبتیں کریں گے جن کی شناخت بھی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے 100%، اور اس میں کسی کی کیا بات کریں، جو خونی رشتے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں، آپ لوگوں نے گھروں میں رکھ خونی رشتوں کو، جو کہ
किसी भी लिहाज से आपके खानदान के, आप उनको भी रख के देखें, आपने उनके भी मदद की जो भी हो सका किसी भी तरीके से, लेकिन जैसे ही वक्त निकल गया उसके बाद फिर वो हमारी बुराइयों की वो रेड लगाते हैं कि हम अच्छे थे। वो जिन्होंने रखा उन्होंने बहुत बड़ी गलती की हमें रखकर, हम तो इस काबिल ही नहीं थे, लेकिन उनकी मुंह में जुबान नहीं पड़ती, बुराइयां करते। 100% रूथ, आपकी ये पोस्ट बहुत सच्ची और अच्छी है। उर्दू मेरी दोस्त, रिश्ते और रास्ते, बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। ये भी जिंदगी के दो पहलू हैं। कभी कभी रिश्ते निभाते निभाते रास्ते खो जाते हैं। बिल्कुल, हम रिश्ते निभाते, कितने लोग हैं जो दूसरों का बोझ उठाते हैं, अपने रिश्तेदारों का बोझ, दोस्तों का बोझ, किसी गरीब यतीम का बोझ उठाते हैं, और हमें ये रिश्ते निभाते निभाते हम अपने रास्ते खो देते हैं। और जिनको रास्ते दिखाते हैं वो इतने उस रास्ते पे भागते हैं कि वो मंजिलें पा लेते हैं, और रास्ते दिखाने वाले उधर ही खड़े उनको देखते रहते हैं। और कभी भी रास्तों पे चलते चलते रिश्ते बन जाते हो। कभी अचानक, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं कि अचानक ही आप जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं और अचानक कोई ना कोई अच्छे और सच्चे लोग, खुदा के लोग भी मिल जाते हैं। जैसे आपने किसी का बोझ उठाया, को आपका भी बोझ उठाने वाला मिल ही जाता है, और उनसे अच्छे रिश्ते बन जाते। किसी को रिश्ते जो हैं रास आ जाते हैं, और किसी को रास्ते। बिल्कुल, अगर किसी को रिश्ते रास आ जाते हैं तो बड़ी खुशकिस्मती है। लेकिन किसी को रास्ते रास आ जाते हैं, कि जिनको रास्ते रास आ जाते हैं वो मंजिलें भी पा लेते हैं, अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं। रास्तों का दुख बर्दाश्त हो जाता है, रास्तों का दुख बर्दाश्त हो जाते हैं, पर रिश्तों के नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि रिश्तों से, बहन भाइयों से, औलाद से जो दुख तकलीफ में मिलती है वो बर्दाश्त, ठीक है, इंसान खुदा से दुआ करता रहता है, सब कुछ बर्दाश्त भी करता है, सब्र भी करता है, लेकिन जो सही बात होती है, जो वो उसके इख्तियार में नहीं रह जाती, फिर वो दुआ ही खुदा से करता है। 3 शेर हैं बहुत खूबसूरत। पहला इरम भट्ट साहिबा का, रोने वालों के लिए रोते नहीं, रोने वालों के लिए रोते नहीं, कह के गमे आशना होते नहीं। रोने वालों के लिए, जो जाहिर है सबसे ज्यादा तो रोया जाता है, कोई रिश्तेदार, अजीज, बहन भाई जब कोई चला जाता है तो कितना रो लेंगे। लेकिन अगर हम, कई बार ऐसा भी है कि हम कह के लगाते हैं, हंसते रहते हैं, लेकिन उन कहकों से हम वो दुख तकलीफ भुला नहीं सकते, जो कि दुख तकलीफ किसी भी हवाले से मिला है, हम उनको भुला नहीं सकते। उर्दू गज़ल की एक शेर है ईद के हवाले से, 2 शेर ईद के हवाले से है। कभी कभी ईद मनाया करते थे, और बिल्कुल सच्ची और अच्छी पे वाकई ईद मनाया करते थे हम भी उनके साथ, क्योंकि जाहिर है हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके वासी मुसलमान हैं, और उनके हमारे अड़ोस पड़ोस में वही लोग रहते थे, मियाँ चन्नू में रहते थे, और हम उनको और वो हमें शामिल करते थे हर ईद शबरात पर। अब ईद गुजारा करते हैं, और वाकई अब तो ईद ही गुजारा ही करने वाली बात है, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से वो ईद जो है वो बहुत बार है। तो जो कुछ भी मिलता है हम उसी में अपने बच्चों को बस समझा कर भी गुजारा कर लेते कि गुजारा ही करो। अब हालात वो नहीं रहे, कहाँ 1 रुपए की बोरी पूरे माल्टों की बोरी भर लेते थे, और अगर किसी के बाग में जाए इतना माल्टे भी ले आते, खा भी लेते कि अब तो माल्टे भी बहुत महंगे, फ्रूट इतना महंगा हो चुका है कि गरीब आदमी से पहुंच से ही बाहर है।
तो फिर गुजारा ही करने वाले की बात है। तीसरा शेर है, सारी उर्दू गजल का एक और शेर है, ईद आई तुम ना आए, ईद आई तुम ना आए, क्या मजा है ईद का। बिल्कुल, अगर हमारे प्यारे, हमारे सज्जन, हमारे दोस्त ना आए जिनसे हम प्यार करते हैं, तो फिर ईद का क्या मजा है। लेकिन अगर रिश्तेदार, अहबाब, जो भी, और ख़ास तौर पर प्यार करने वाले दोस्त आ जाए, तो फिर वो ईद खूबसूरत हो जाती है। ईद आई तुम ना आए, क्या मज़ा है ईद का। ईद ही तो नाम है, ईद ही तो नाम है, एक दूसरे की दीद का। बिल्कुल, ईद तो नाम है, लेकिन हम जब गले मिलते हैं खूबसूरत तरीके से, तो वो फिर ईद एक दीद बन जाती, खूबसूरत प्यार बन जाता है। और इसी का नाम ईद है कि हम हर चीज़ को, गलतियों को, एक दूसरे की जो भी गलतियां हुई भुला के हम प्यार की तरफ बढ़ जाते हैं। आरफ डैनियल चौधरी साहब का बहुत अच्छी, आप रोज पढ़ते हैं हमारे बाप के आखिर में, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, खुदावंद के हवाले से है। और दिल को के बादशाह और कुदरत और जलाल तेरा ही, ये सब कुछ जो कुछ भी है ये सब उसी का। और हम रोज ये पढ़ते हैं, हमारे बाप के बाद आखिर में पढ़ते हैं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। और हमने इस बात का इकरार करते कि तू ही खालिक और मालिक है, तू ही सब कुछ है, तू ही वाहद खुदा है जो खालिक और मालिक है। बशीर मसीह गिल साहब यूके से उन्होंने लिखा, जे करते नू ना हुंदा प्यार, खुदाम जी इस मसीह दे हवाले नाल 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 पंजाबी भी चल रही है, जे करते नू ना हुंदा प्यार, पसली नेजा पार ना हुंदा। बिल्कुल, अगर खुदाम जी इस मसीह नू साडे नाल प्यार ना हुंदा, साडे लिए तो उन्हें जान दी, साडे लिए तो मुराद इत नहीं कि सिर्फ साडे मसीहा लिए, असी तो मसीह ही बाद च होया, लेकिन उन्हें तो कुल आलम लिए, क्योंकि उस आलम ने बहुत बुरी तरह, बहुत परस्ती च, गुनाहां च, शैतान दे जंगल दे विच फस चुकिया सी। लेकिन साडे लिए उन्हें प्यार सी इस दुनिया दे नाल ही, ते उन्हें पसली च नेजा खादा सी, मैं भी मंजर लब ना सकदा। बिल्कुल, अगर खुदामदी यसू मसीह साडे लिए अपनी जान दी कुर्बानी ना देंदा, ओ बर्रा जेड़ा खुदा दा बर्रा सी ओ ज़बा ना हुंदा, तू जे मेरा यार ना हुंदा। और इस तो वड्डा कोई यार है जेड़ा सूली ते चढ़ जाए या किसी यार की खातर जान दे दे, बहुत मुश्किल गल है। लेकिन सिर्फ साडे खुदावंद यसू मसीह ने ही जेड़ा अपना प्यार विखाया। बशीर गिल साहब ने जेड़ा लिखिया, जेकर तेनू निया हुंदा प्यार, जे उन्होंने प्यार ना हुंदा, ते इस करके उन्हें साडे प्यार की खातर ही सारी जान दी थी। नैना मरियम बहुत अच्छी, आज की सच्ची और अच्छी बात है। यकीन माने खुदा हमसे सिर्फ हमारा ही हिसाब लेगा। और बिल्कुल 100% सच्ची बात है, हम अपने हिसाब का नहीं देखते, हम दूसरों का हिसाब रखते हैं। और यही इस पोस्ट का मतलब है, यकीन जाने खुदा हमसे सिर्फ हमारा हिसाब लेगा। इस वास्ते ये कहना छोड़ दें फलाना शख्स बहुत बुरा है। हम अपने जेड़ी पंजाबी च गल कहते कि असीं अपनी मंजी दे थल्ले भी डांग फेरिए, अपने आप वाल भी वेखिए कि असी की है। हम दूसरों का तो हिसाब करते हैं, लेकिन अपना हिसाब, लेकिन जब हम खुदा के पास होगा, वो ये नहीं पूछेगा कि उसने कितनी बुराई की है, आपके दोस्त ने कितनी बुराई की है, आपके किसी रिश्तेदार ने कितनी बुराई की है। वो अगर लेगा हिसाब तो सिर्फ मेरा हिसाब लेगा, वो किसी का हिसाब, हर एक को अपना अपना हिसाब देना। और हमने इस बात को भूल के बैठे हैं, हम दूसरों का हिसाब करते हैं, दूसरे की गलतियों गुनाहों का हिसाब करते हैं।
लेकिन अपने आप को भूले बैठे। बहुत अच्छा नैना मरियम ने लिखा है। बशीर मसीह गिल साहब का यूके से बाइबल मुकद्दस से हवाला है। आए लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो। किस पर? उस खुदा बाप और बेटे पर तवक्कल करो। अपने दिल का हाल अगर उसके सामने खोल दो, खुदा हमारी पनाहगाह है। हमने अब हर वक्त उस पर ईमान रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, आस और उम्मीद रखें। अगर हम अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दें, मैं अपने दिल का हाल जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी गुनाहों गलतियों का जिम्मेदार है। जैसे अभी मैंने नैना की पोस्ट पढ़ी कि दूसरे का हिसाब नहीं लेना, हमें अपना दिल खुदा के सामने खोलना है, हमें अपना अपना हिसाब देना। तो ये जो हवाला है बाइबल मुकद्दस से, ज़बूर 62 और उसकी 8 आयत, बहुत अच्छा हवाला बशीर साहब ने डाला। आइजक जाजम साहब के बहुत अच्छा लिखा, बचपन मेरा एक यादगार। बिल्कुल, और बचपन तो वो चीज है कि भले 80 90 100 साल से भी बंदा ऊपर चला जाए, लेकिन जो बचपन और जहां बचपन गुजारा, जिस स्कूल में तालीम हासिल की, जिस गांव में, जिस शहर में पैदा हुए, वो बचपन कभी नहीं भूल सकता। वो जो खूबसूरत लोग थे, खूबसूरत बचपन के साथी थे, वो कभी नहीं भूल सकते। वो इस दुनिया में है नहीं। ये तो हर एक को पता है कि अपना अपना बचपन कैसे गुजरा। एक यादगार होता है बचपन भी, और लिखा है जहन से जाता नहीं लड़कपन मेरा, कभी नहीं जा। बूढ़ा भी हो जाता है इंसान, लेकिन वो फिर भी अपने आप को जवान ही समझ, फिर भी वो अपने आप को उस माजी में, बचपन के माजी में ले जाता है, और जहन से वो नहीं निकल सकता। वो माँ के साथ, माँ के हाथ की रोटियां, बाप की खूबसूरत तरबियत और बहुत मेहनत, खो गया जाने कहाँ बचपन मेरा। इतनी उम्र बीत गई और मुझे याद भी नहीं कि मेरा बचपन कहाँ खो गया, किधर चला गया वो सारा बचपन। फूल थे औकात, दुनिया फूल थी, और हम कई फूलों की तरह थे। और बिल्कुल बच्चे और जैसे भी बचपन से निकलते हैं, फूल ही होते हैं, फूलों की तरह। और एक फूलों की तरह हमारी औकात होती है, और फूलों की तरह ही हर कोई हमें संभालता है। माँ बाप भी स्कूलों में जाते हैं, वो हमें खूबसूरत तालीम और तरबियत देते हैं। रह गया आखिर अधूरापन मेरा, और जो सब कुछ मेरा आखिर में वो सारा कुछ अधूरा रह गया। जो मैं पूरा करना चाहता था वो आधा रह गया, मैं पूरा कर ही नहीं सका। बहुत अच्छा लिखा, हम सफर हर जाई होते हैं यहाँ। बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा जाजम साहब आपने, कि जो हम सफर होते हैं, दोस्तियां भी की हैं, हर तरह की वाकई हर जाई निकलते हैं, सब कुछ बिल्कुल बेवफा लोग निकलते हैं। जिस तरह भी मैं शेर पढ़े सी बिशारत गिल साहब दा, सप्पा विच रहना है, सप्पा विच रहना है, हुण फिर बीन वजानी सिख। असी सप्पां च रहिने आ, हरजाई लोगां च रहिने आ, भावें जिन्नियां मर्जी असी बीना वजाइए, ਉਹਦਾ कोई असर नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। हम सफर हर जाई होते हैं यहाँ बेवफा, बेवजह मसल कर बेवजह मसला गया जोबन मेरा, और बेवजह ही मेरा जोबन जो है वो मसला गया, खत्म कर दिया गया। कहते हैं हर चीज मिलती है यहाँ, बहुत अच्छी बात है, और मिलती तो है दुनिया में, किसी चीज की कमी नहीं। ये जो खुदा ने सब कुछ बनाया है, और बिल्कुल इसमें किसी चीज की कमी नहीं। कहते हैं हर चीज मिलती है यहाँ, पर कहाँ मिल पाएगा दर्पण मेरा। हर चीज मिलता है, बिल्कुल हमने किसी चीज की कमी नहीं। खुदा ने कितनी नेमतें दी, इतनी सारी नेमतें दी, लेकिन गया वक्त हासिल नहीं होता। जो मेरा दर्पण, जो मेरा बचपन, जो मेरी जवानी, खूबसूरत जवानी चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। और बहुत अच्छा लिखा है
आखिरी शेर है, जा ज़माने मुझको क्या लेना, सारी जा ज़माने तुझको क्या लेना मुझसे, जा ज़माने तुझको क्या लेना मुझे, दे दे नहीं सकता तू बचपन मेरा, भले जमाने तू जो मर्जी तू, मैंने तुझसे क्या लेना है, जब तू मेरी बचपन और जवानी नहीं दे सकता, मेरा दर्पण नहीं दे सकता, वो खूबसूरत फूलों जैसी जिंदगी जहां हमारे जहाज चलते थे, किश्तियां चलती थी पानी में, वो बचपन कहाँ मिल सकता है। दोस्तों के साथ रात रात बैठ के गप्पे और बहुत सब खूबसूरत महफिलें, वो कहाँ मिल सकता है, सब बीत गया। बहुत अच्छा लिखा है जाजम साहब, आपने मुझे भी मेरा जो बचपन है वो याद करवा दिया। बशीर गिल साहब का, बशीर मसीह गिल साहब का बाइबल मुकद्दस से है, हवाला नहीं दिया लेकिन है बाइबल मुकद्दस से ही जो भी उन्होंने कोटेशन लिखी है। जो सच्चाई को नहीं मानते वो अंधेरे में चले जाते हैं, बिल्कुल सच्चाई को नहीं मानते, जो झूठी बीन वजांदे ने वो अंधेरे च चले जाते ने, लेकिन अगर सच्चाई दी बीन वजाइए तो फिर असी लोह च नूर च खुदा दे नूर च जावांगे। जो सच्चाई को नहीं मानते वो अंधेरे में चले जाते हैं। खुदा का कलाम मर जाता है, खुदा का कलाम मर जाता है। जब सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मुझे फख्र है, मुझे मसीही होने पर फख्र है, क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम को सच्चाई, सबसे बड़ी सच्चाई तो यही पाक कलाम है, अगर हमने सच्चाई को नहीं मानते तो इसका मतलब है कि हम झूठ को, और झूठ से खुदा की बातें भी, खुदा का कलाम भी जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। अगर हमने सच्चाई, सबसे बड़ी सच्चाई ज़ाब्ता ही आता है बाइबल मुकद्दस, हम अगर इस सच्चाई को नहीं मानते तो हम खुद ही झूठी बीन बजाते हैं, झूठ की बीन बजाते हैं। हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनते खुदा की बातों के, क्योंकि अगर खुदा मोहब्बत है और हम बोलते भी हैं कि खुदा मोहब्बत है, तो फिर हम, अगर खुदा मोहब्बत है तो हम एक दूसरे का सहारा क्यों नहीं बनते, हम एक दूसरे का साथ क्यों नहीं देते, हम एक दूसरे की बुराई पे बुराई क्यों करते हैं, हम साजिशें और गैबियतें क्या कुछ एक दूसरे के करते हैं। जैसे नैना की एक पोस्ट मैंने पढ़ी, नैना मरियम की, कि हिसाब मुझे ही अपना देना, हम दूसरों का हिसाब तो करते हैं, तो इसलिए हम दूसरों की बुराई करके हम अपने ऊपर बोझ बना लेते हैं। लेकिन अगर हम दूसरों का सहारा बने तो फिर हमारे बोझ भी हल्के हो सकते हैं। उर्दू गजल, रायगा नहीं जाती दिल पे जो गुजरी है, बिल्कुल जो बात, जो बुराई दिल पे गुजर जाती है, सारी रायगा नहीं जाती दिल पे जो गुजरती है। आदमी बिखरता है, जिंदगी संवरती है, बिल्कुल कोई बात नहीं रहेगा। अगर हम मुश्किलात से गुजरते हैं तो फिर जिंदगी हमारी खूबसूरत बनती है, और मुश्किलों से ही जिंदगी बनती है। बिल्कुल 100% ये शेर उर्दू गजल का है। समरीन रशीद साहब कराची से उन्होंने लिखा है, आजकल लोगों को रास भी चक्करबाज लोग ही आते हैं। 100% जो लोग चक्करबाज, जो झूठ बोलते हैं, हर वक्त एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, वो लोग ही लोगों को रास आते हैं। मुखलस वफादार को तो जहनी मरीज और खानदानी पागल होने के लकब से नवाजा जाता है। 100% मेरी बेटी है, आपकी पोस्ट बहुत अच्छी और सच्ची पोस्ट है। द वे ऑफ ट्रुथ एंड लाइफ, ये टाइम लाइन है जहां पर उन्होंने बाइबल का हवाला दिया है, खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं, बिल्कुल नापाक ख्वाहिशों से जो जिस्म की ख्वाहिश या जो अपने नफ्स की ख्वाहिश करते हैं, वो क्या है, वो जिस्म की पैरवी है, वो रूह की या खुदा की बातों की पैरवी नहीं करते, और हिकमत को
जो अक्लमंदी की बात है उसको नाचीज समझते हैं, वो गुस्ताख और खुद राई हैं। खुद राई जो खुद अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, झूठी बातों को, झूठी बीन बचाना चाहते हैं, और इज्जतदारों पर लान तान करने से नहीं डरते। बिल्कुल सच्ची बात है खुदा के कलाम। और हम इज्जतदार लोगों को, जैसे ऊपर समरीन की अभी मैंने पोस्ट पढ़ी सी, कि जो मुखलस और वफादारों को तो जहनी मरीज और खानदानी पागल होने के लक़ब से नवाजा जाता है। और यही बात है कि वो बाइबल की ये बात है कि वो गुस्ताख और खुद राई हैं और इज्जतदारों पर लान तान करते हैं। और यह है बाइबल मुकद्दस से हवाला 2 पतरस 10 बाप और उसकी 2 आयत। बहुत अच्छा। आज का जो मेरा शो है, एक दूसरे का बोझ उठाओ, वो इख्तिताम पजीर होता है और बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्ट है। और ख़ास तौर पर जो तारक साहब ने लिखा पंजाबी च, गुजरिया वक्त नहीं हथ आना, कम करदियां निभ जानी है साडा जेड़ा वाला। और यो ही जाज़म हाजिर साहब ने लिखा बचपन दे हवाले नाल कि मेरा जो यादगार बचपन सी वो गुजर चुकिया, हुण कम करदे तेनी जिंदगी पा लई है, हुण वो यादां ही रह गईयां ने। ते यह भी बड़ी खूबसूरत गल सी पोस्ट शेर एक बिशारत गिल साहब दा हालैंड, सप्पां विच ही रहना है असी, जिंदगी अपनी सप कौन है? शैतान। इन्ना आस्तीन दे सप्पां विच ही रहना है। लेकिन अगर असी खुदा नू याद भी करिए और एक दूसरे दे बोझ उठाइए तो इन्हां सप्पां दी असी सिरियां फे सकने हैं। हुण भी फिर ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੀਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਪੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੀਨ ਵੀ ਫਿਰ ਵਜਾਣੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਬੀਨ ਵਜਾਣੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣਗੇ। एक दूसरे का सानू बोझ उठाना चाहिए, खुदा का हुक्म है। तो आज का जो हवाला पढ़ा था और यही मेरा टॉपिक है, पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम और उसका 6 बाप और उसकी पहली 6 आयत पढ़ूंगा। आए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो जो रूहानी हो उसको इल्म मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल करो कि जो कोई गलती गुनाह करता है उसको हलीमी से, प्यार से, खुदा के कलाम के तरीके से उसको समझाओ और उसको माफ करो। लेकिन साथ लिखा कि अपना भी ख्याल कर, अपनी आंख का भी तिनका देख। हम दूसरे की आंख का तो शतीर देखते हैं, सारी दूसरे की आंख का तो हम तिनका भी देख लेते, लेकिन अपनी आंख का शतीर नहीं देखते। और यही खुदावंद के कलाम ने लिखा कि अपना भी ख्याल कर कि कहीं तू भी झूठी बीन तो नहीं बचा रहा, तू भी झूठ तो नहीं बोलता। जब मैं झूठ बोलूंगा तो फिर हम दूसरों को कैसे नसीहत कर सकते हैं? कहीं तू भी तो आजमाइश में ना पड़ जाए। हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को बुराइयां, लेकिन अगर तू भी आजमाइश में पड़ जाएगा तो फिर तेरा क्या होगा? तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह यस्सु की शरीयत को पूरा करो। एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का बोझ उठाओ और तुम यस्सु मसीह की शरीयत को पूरा करते हो। क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो, और यही सबसे बड़ा में, हम कुछ भी नहीं होते लेकिन हम अपने आप को समझते बहुत कुछ है। बस कुछ ना हो तो तू अपने आप को धोखा देता है। वैसे बिल्कुल हम समझते हो कि मैं कुछ नहीं, और अपने आप को धोखा दे रहे कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ। इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे के बाबत। अगर आप अच्छे काम करते हैं, अच्छे सोच रखते हैं, खुदा की शरीयत के मतलब खुदा के,
تو پھر اپنے آپ پر فخر کر سکتے ہیں، دوسروں پر نہیں، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا ہی بوجھ اٹھانا پڑے گا، ہر شخص کو اپنا ہی حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے کہ میری زندگی ٹھیک ہے، ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی پیار محبت کے ساتھ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلے، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں گے، ایک دوسرے کا بار اٹھائیں گے تو ضرور برکت پائیں گے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا اپنی بڑی برکت بخشے۔ اور یہ تھا آج کا شو جو میرا اختتام پذیر ہوا۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنی حفاظت و نگہبانی میں رکھے، ہر دکھ تکلیف، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی وبا سے آپ سب کو بچا کر رکھے۔ آمین۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی، آمین۔